पाकिस्तान में धुरंधर रुकने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि जैश ए मोहम्मद के जो बड़े भैया थे मसूद अजहर, उसे किसी ने चटका दिया। रीजन कहीं भी मेंशन नहीं कि किसने मारा कैसे मारा, क्योंकि हमें तो पता ही गया काम अननोन बंदे ने किया है। रिजवान भाई थोड़ा देख दाख के करो, अभी कुछ दिन पहले ही भाई तुमने कमर बाजवा को चटकाया, अभी इसको चटका दी। भाई इतने जल्दी जल्दी करोगे तो पाकिस्तान वालों को शक हो जाएगा कहीं इंडिया वाले धुरंधर 3 की तो शूटिंग नहीं कर रहे। धुरंधर क्या रिलीज होगी, बॉलीवुड के सारे पाकिस्तानी प्रेमियों ने हगना शुरू कर दिया, हगना छातियां पीट के। दिया मिर्जा बोलती है करके बोलती है कि देशभक्ति भी इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब इतनी ज्यादा देशभक्ति हमें नहीं दिखानी चाहिए, हमें पाकिस्तान की चाटनी चाहिए, देशभक्ति नहीं दिखानी चाहिए। फिर ऊपर से वो विशाल दुल्लानी उफ गंजा टकला आके बोलता है, वो बोलता नहीं, वो तो करके दिखाता है भैया। वो तो पाकिस्तानी जो कंप्लीट एंटी इंडिया है, जो कि भारत के झंडे पे खड़े होके इंटरव्यू लेती है लोगों के, ठीक है, वहां यूके में बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के उसके साथ ऐसे हंस के बातें कर रहा था भैया। मैं तो आदित्य धर का भाई चरण स्पर्श करूँ आदित्य धर में आपके, आपने ऐसी मूवी बना दी कि बॉलीवुड के कीड़े चुपक के बाहर आ रहे हैं। और ये सब मुझे बहुत अच्छे से पता चल रहा है कौन कितना देश का है और कौन कितना देश का नहीं। बड़वो Hi from Sao Paulo. And that too must watch. And this is first Hindi movie in Brazil. It couldn't have been a better movie to launch this experience. Excellent. That's of your amazing. Ranveer, you rock. Lots of energy in the room as well. Acting was amazing. Direction was amazing. Oh, what a masterpiece by Aditya. Aditya Dhar, you are great. You are finest director. People cannot watch a reel more than 15 seconds, but Aditya Dhar made us watch a film for 4 hours. It's a reality and it's good for India. Bom, trata-se de um filme épico, de ação, de aventura, que conta uma parte da história recente da relação da Índia com o Paquistão. I never knew my Brazil trip will be so memorable. It was totally raw and lethal. Enjoyed it thoroughly, and we look forward to getting more shows like this for the entire community to come together. Very good. Lovely. Wonderful! Woohoo! Great movie. Hi, we love the movie. First time, demand more. Here. Good music by Shashwat Sachdeva. On big screen. We are very proud of. It started with Dhurandhar and Ranveer, you rock movie. Some fun we had. Looking forward to many more opportunities. Again, we are We proud enjoy. to be in India. Yeah. If I ask you this question today, and we're sitting in 2026, and Dhurandhar is such a outstanding film, but also it's a bit chest thumping because I feel, the mood is, when you're anti-ISI or anti-Pakistan, which I see 814 was not, and it was called out for that. I mean, those films are, there's just so much chest thumping because of that, and those films are adored. I mean, even the BJP handle had, they called the Prime Minister Dhurandhar and had that. So, do you feel it was called out for being humanizing all the characters, even those who were, the terrorists. Yeah. And much of I guess because we're celebrating jingoism too much now. We adore it. And there is a trend to kind of enjoy and celebrate jingoism, which our show was not. Yeah. I don't regret it at all. I think it's great it's that a great show it had such a balanced view and gave people an opportunity to see each side for the way it was. Yeah. Also, I think Anubhav Sinha. So much. लियारी को बॉलीवुड की इस एपिक दियो मलाई कहानी में देखकर आपको कैसा महसूस हुआ? इंडिया इज अगेंस्ट पाकिस्तान एज अ होल, तो उन्होंने क्योंकि लियारी का इस्तेमाल किया है इस दफा, तो लियारी के अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत रिजेंटमेंट है। लियारी वाले जो है बिल्कुल भी खुश नहीं है कि लियारी को इतना नेगेटिवली पोर्ट्रे किया। I think इस फिल्म ने भी उतना ही या उससे कहीं ज्यादा जो है शोर मचाया है। नहीं, उधर नहीं, इधर उससे भी ज्यादा लोग पागल हैं क्योंकि यहाँ देखने को नहीं मिल रही। आपको कैसी लगी धुरंधर मूवी? आपके इलाके के ऊपर बनी हुई है फिल्म, तो बहुत अच्छा लगा हमारे को। फिल्म तो बहुत अच्छा आया हुआ है। अब आए ना लाइन पे। ये बिल्कुल ये है कि इसकी वजह से जो है ना लियारी फेमस हो गई है। लियारी को पहले कोई जानता नहीं था, अभी है कि लियारी माशाल्लाह काफी। मुझे तो बहुत हंसी आती है खानों के बारे में सोच के। बॉलीवुड के 3 खान पहले मेरे को भगते थे, अभी मेरे को भगते। आई एम सॉरी अगर किसी को मैं ऑफेंड कर रही हूँ, एक्चुअली आई एम नॉट तुम्हारी, क्योंकि इतने देशद्रोही लोग मैंने नहीं देखे भाई, और इतने हिपोक्रेट है ना, एक नंबर के मार सबके सब भाई। इनको डालनी है मूवियां, ठीक है, जवान, टाइगर जिंदा है, बजरंगी भाईजान, क्या ना क्या दिखाना है, ठीक है,
पर जहां असलियत में मौका आया कि भाई देखो अपने देश के लिए खड़े हो, अपने सोल्जर्स को सपोर्ट, वहां पे इन्होंने वाली अपनी कहते नहीं हम तो ऐसे थोड़ा गूंगे हैं, हमारी है, हम तो नहीं बोल पाएंगे। इतनी कुती हो भाई तुम शर्म आनी चाहिए अपने आप को हिंदुस्तानी बोलोगे, तुमने किसी को सपोर्ट नहीं किया इस टाइम पे। तो भाई अभी आप सब लोगों को बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा होगा अनीत पड्डा रीत पड्डा, लगाई फालतू की थोड़ी सी होशियारी, तो लोगों ने खोल दिया भाई अनीत पड्डा है। सबसे पहले मैं तो जानता भी नहीं था, मेरे जैसे लाख लोग नहीं जानते होंगे, ये सैयारा मूवी के एक्टर है। और भाई इंस्टा पे पाकिस्तान गद्दारों को भी फॉलो करती है। एक दो पाकिस्तान के ऐसे लोग हैं जो यहाँ जब भी टेरर अटैक हुए ऑपरेशन सिंदूर का मजाक बनाने वाली हसन पाइकर को भी फॉलो करती है। और ये एक है रीत पड्डा, इसकी बहन, अपनी बहन की वजह से भाई ये तो बहन की कार्ड ही बन गई भाई। इसकी बहन ने अभी क्या किया भाई, प्रोपेगेंडा बोल दिया धुरंधर 2 को, प्रोपेगेंडा बोलने की वजह से भाई, और खुद लोगों ने इतनी मारी इतना चड्डा बोला, इतना भाई खड्डा होता इन लोगों का। रीत पड्डा ने अपना अकाउंट किया प्राइवेट, शायद अब तक तो रीत पड्डा जी ने डिलीट भी कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, बची अनीत पड्डा। अब अनीत पड्डा का इतना खड्डा खुद्दा बोला कि अनीत पड्डा के फॉलोअर्स होने लग गए भाई। छोटी बहन ने बड़ी बहन की खत्म कर दिया सीने। छोटी बहन रीत पड्डा का बॉयफ्रेंड भी पाकिस्तानी है, सोचो बहन, देश में ही देश के गद्दार बैठे हैं भाई। और इन लोगों ने कश्मीर फाइल्स, केरल स्टोरी, धुरंधर 2, जो भी इंडिया के सपोर्ट में मूवी बनती है जिसमें भिखारिस्तान की सच्चाई दिखाई जाती है, उसको तो ये प्रोपेगेंडा बोलेंगे। कश्मीरी हिंदुओं तक का इन्होंने मजाक बना रखा है भाई। तो जनता इतनी चूतिया नहीं है, लिमिट तक ही देखती है। अनीत और रीत पड्डा दोबारा से औकात में रहना, वरना बोलेगा और खड्डा भी बोलेगा। मुझे अपनी बीवी पे सीरियसली भाई शक होने लगा है। दिसंबर में धुरंधर 1 आई, नहीं देखने दी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, हम दोनों को मूवी देखने का शौक नहीं है, 4-5 साल से हम लोग मूवी नहीं देखी होगी, बट इसमें इतना क्रेज हो गया मूवी का, मैंने नेटफ्लिक्स पे पार्ट 1 लगाई, अगले दिन जाके मैं पार्ट 2 देख के आया। जब मैं देख के आया मुझे इसके तेवर बदले लगे। मैंने कहा कहीं ये एजेंट तो नहीं है, इसीलिए मेरे को मना करी थी कि मैं देखाऊंगा तो मुझे शक हो जाएगा। और फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कौन एजेंट नहीं है भाई, नाम ही राठी है। राठी लोगों का है ही प्रॉब्लम धुरंधर से भाई। जब आप कश्मीरी हिंदू फैमिलीज के दर्द को एक नैरेटिव कहती हो, when you call out the women who were forcefully converted a propaganda, then I actually don't know whether you are standing up for the truth or for your selective activism. And this is not actually said by me. ये कहना है अनीत पड्डा, जो कि हमारे जेनजीज के फेवरेट मूवी सैयारा की मेन एक्ट्रेस है, उनकी बड़ी बहन रीत पड्डा का। You can actually see her comments here. अब कश्मीरी हिंदू फैमिलीज के आंसुओं का मजाक बना रही हो जो आज भी इंसाफ मांग रहे हैं। आप उन औरतों के चीखों को प्रोपेगेंडा बोल रही हो who have literally been through hell. आप प्रियंका चोपड़ा के बारे में भी बोल रही हो when you actually can't reach to her level. You know, calling out global stars for silence is actually easy, but having the audacity to call out to silence the victims of your own soil, it's not about being progressive, it's about being heartless. I mean, logic और empathy का कुछ लेना देना ही नहीं है क्या? And आपकी बहन अनीत पड्डा भी कोई कम नहीं है, वो सोशल मीडिया में हसन पाइकर को फॉलो करती है, जो कि इंडिया के बारे में हमेशा से डेरोगेटरी कमेंट्स पास करते आए। इससे पहले ध्रुव राठी पे मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ लोग आके बोलते हैं कि भाई ध्रुव तेरा बाप है, तू ध्रुव के नाम पे व्यू छाप रहा है। भाई उस वीडियो पे मात्र 3000 व्यू गया है और तुम बोले हो कि ध्रुव पापा के नाम पे व्यू छाप रहे हो। अगर ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बना के मेरे 3000 व्यूज आ रहा है और उस हिसाब से ध्रुव राठी मेरा पापा हो जा रहा है, तो भाई ये बंदा मोदी जी पे वीडियो बना के मिलियंस ऑफ व्यू कमाता है, तो क्या मोदी जी इसकी माँ का भतार नहीं हुआ? धुरंधर एक प्रोपेगेंडा मूवी है। क्यों? क्योंकि धुरंधर से पहले बॉलीवुड ने पाकिस्तान को कुछ ऐसे दिखाया था। मैं हूं ना मूवी में पाकिस्तान इंडिया की हेल्प कर रहा है और टेररिस्ट कौन है? एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर राघवन। पाकिस्तान भी हमारा साथ दे रहा है। पठान मूवी में हॉट ISI एजेंट भारत की हेल्प कर रही है। सॉरी टाइगर जिंदा है मूवी में पाकिस्तान क्या चाहता है आप खुद ही सुन लीजिए। We stand for peace. हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चुके मत रहेंगे। धुरंधर मूवी को ना देखने पर आमिर खान का नया सवाल। आमिर खान का कहना है कि मैं ऐसी चीजें नहीं देखता, मैं अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ, मैं ऐसी फिल्में नहीं देखता। अबे भैया, मौलाना जी की जलन तो अंदर तक लगी हुई है, लेकिन करे क्या, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि धुरंधर ने इनकी धुर्ज उतार कर पटक दी है। अगर मैं तो ये कहना चाहती हूँ 2, 4, 10, 5 ऐसी मूवियाँ बनने लग जाए ना, तो जितनी भी ये बॉलीवुड में खान गैंग फैमिली है ना, सारी चटनी बन जाए चटनी। भाई नमन है मेरा धुरंधर मूवी बनाने वाले डायरेक्टरों के लिए, और भैया 10-5 ऐसी मूवी बन जाए ताकि इनकी जो चलन है ना और बरकरार हो जाए। हाँ भैया, ये ऐसी चीजें क्यों देखेगा, ये तो उनको देखते हैं, ये तो पीके मूवी बनाते हैं जिसमें हमारे सनातन धर्म का, हमारे भगवानों का अपमान किया जाता है। उन्हें तो बड़ा हंसकर बनाते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं। जब किसी ने इनकी औकात खोलकर पटक दी है तो भैया अब ये कह रहे हैं कि मैं ऐसी चीजें नहीं देखता। स्कूल कॉलेजेस में जैसे ग्रुप स्टडी होती थी, वैसे ही धुरंधर के इफेक्ट से अब ग्रुप मेल्टडाउन हो रहे हैं। मुझे इस ग्रुप मातम में एक चीज पसंद आई, वो थी ऑनेस्टी। ये खुद ही अपने शो का स्टैंडर्ड पहले ही बता देते हैं। कोई स्टैंडर्ड नहीं शो का। इस मातम शो में पांचों के पांचों कंटेस्टेंट्स आपस में ना कंपीट करते हैं, कौन सबसे ज्यादा गवार हो सकता है। वैसे जिस पैनल में कुणाल कामरा हो तो ये काम थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है बाकी सबके लिए, पर सबने अपना बेस्ट दिया। शेरवानी जली ना, शेरवानी जली, शेरवानी उतारो। कुछ ही देर के आर्गुमेंट्स के बाद आरफा ने बाकी सबसे लीड ले ली। धुरंधर 1 का नंबर 1 रीजन जो हिट होने का था वो था एवरीथिंग अबाउट दैट वाज मुस्लिम। वैसे आरफा ने यहाँ पर एक वर्ड ऐड करना भूल गई, टेररिस्ट। पहली बात तो ये जो मूवी थी ना, ये मुसलमानों पे नहीं थी, ये टेररिस्ट पे थी, टेररिज्म पे थी।
थी और ट्विटर पे टेररिज्म हैज नो रिलीजन बोलने वाली आरफा कि यहाँ उनका रिलीजन खुद ही बता देती है। अब आरफा को लीड करता हुआ देख के कुणाल कामरा से रहा नहीं गया। My name is Khan. Karan Johar literally left Bandra and went all the way to America to find minorities being oppressed. That is propaganda. वैसे कुणाल कामरा की नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि माय नेम इज खान 2010 में रिलीज हुई थी और ये मूवी रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड थी। और क्या थे वो रियल इंसिडेंट्स? कुछ ज्यादा नहीं थे, बस इतने सारे टेररिस्ट अटैक थे जो कि आपकी स्क्रीन पे पूरे भी नहीं आ पा रहे हैं। और देखो कुणाल बस यही नहीं रुकता है, आगे ऐसा लॉजिक देके मारता है जिसके बाद बाकी के चारों लोग ये समझ जाते हैं कि क्यों इसे हर शो के बाद तमिलनाडु भागना पड़ता है। बट इसमें तो कोई मुस्लिम है ही नहीं। अबे जिस मूवी में आईएसआई का नेटवर्क दिखाया गया हो, जिस मूवी में इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दिखाया गया हो, जिस मूवी में 26/11 कांधार हाईजैक और पार्लियामेंट अटैक के मास्टरमाइंड दिखाए गए हो, वहां न्यूट्रल पीसफुल, अच्छा पीसफुल कहां से दिखा दे बे? अब कुणाल सुनो, एक बात क्लियर कर लो, इस टाइम पर धुरंधर एक मूवी नहीं एक हॉबी बन चुकी। सिंस दिसंबर दिस इज वन थिंग दैट हैज बीन कॉन्स्टेंटली ऑन आवर माइंड। सुबह उठते हैं तो इंस्टाग्राम पे सिर्फ धुरंधर का कंटेंट चलता है, उसी को हम अपने ग्रुप चैट पे फॉरवर्ड करते हैं। फिर कुछ भी कर रहे हो, दिमाग में सिर्फ धुरंधर के गाने चल रहे हो ना, बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ भी चल रहा हो, बट मेरे दिमाग में दिल पे जख्म खाते हैं चल रहा है। और अगर किसी से मिल रहे हो तो फर्स्ट क्वेश्चन धुरंधर देखी क्या, और अगर देखी तो घंटे तक पीक डिटेलिंग डिस्कस होगी। और ये डिस्कस करते करते वापस थिएटर। कुछ लोगों ने तो 4-5 बार ही देख लिया, कुछ लोगों ने बोला उन्होंने 12 बार ही थिएटर में देख लिया। ऑल्सो सेइंग दैट इट इज लाइक शोले ऑफ आवर एरा, बट आई थिंक इट्स बिगर एंड बेटर। वो सब तो वैसे लेगेसी टाइम का है ना, बट अब जो मूवी आई है, ये मूवी लोग मूवी बनाते हैं 100-200 करोड़ कमाने के लिए, लेकिन ये मूवी जो आई है ये 100-200 करोड़ को जगाने के लिए आई है। तो मैं यही कहता हूँ कि सभी भाइयों को ये मूवी देखनी चाहिए और बहुत ही अच्छा मूवी है। पूरे इंडिया को टेंशन में डाल के ये लड़की, इंसान सोच रहा है ये लीना पाकिस्ताने में रह गई, पाकिस्ताने में रह गई, हमजा भाई उसको क्यों नहीं लेके आए? आइए बंदी वागड़े में मैच देख रही भाई, मिल गई यालीना भाई, यालीना मिल गई, सेफ है इंडिया में। भाई जस्ट धुरंधर देख के निकली हूँ, बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो यूएस में भाई इतना मूवीज दिखाते हो एटलीस्ट थोड़ा सा इंटरवल तो दिया करो उठने के। 4 घंटे की मूवी और चूज करना पड़ता है कौन से गाने के बीच में जाए क्या जाए। भाई साहब थोड़ा सा तो ब्रेक डिजर्व करते हैं यार, टॉर्चर हो जाता है बैठने के लाइन तक एकदम। नमस्कार दोस्तों, साल 2023 में एक प्रोपेगेंडा मूवी आती है कोई मिल गया। इसमें दिखता है कि कैसे एक एलियन की हेल्प से एक मेंटली चैलेंज बच्चा स्मार्ट और पावरफुल बन जाता है। रातों रात वो डांस, बास्केटबॉल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीख जाता है। अब आप कहेंगे कि ये मूवी तो फिक्शनल है, पर अगर ये फिक्शनल थी तो इसमें रियल लोकेशंस क्यों यूज की गई? फिल्म में एक रियल हिल स्टेशन कसौली ही क्यों दिखाया जाता है, जबकि वो नाम बदला भी जा सकता था? असल बात यह है कि ये मूवी एक प्रोपेगेंडा है और राकेश रोशन अटल बिहारी वाजपेयी जी के चाटुकार थे। सब जानते हैं कि एलियन सिर्फ अमेरिका आते हैं क्योंकि वो अमीर और डेवलप्ड है, पर राकेश रोशन ने इंडिया को अमीर और डेवलप दिखाने एलियन इंडिया बुला लिया, वो भी ओम के मैसेज के साथ। टिपिकल हिंदुत्व प्रोपेगेंडा। वो चाहते तो अल्लाह अकबर या हेल जीसस भी मैसेज कर सकते थे। एक तरफ जहां लोग डंकी रूट से अमेरिका जाते हैं, जब एलियन को लीगली अमेरिका ले जाया जाता है तो वो दुखी हो जाता है। ये सीन उन्होंने ये दिखाने डाला कि इंडिया अमेरिका से बेटर है। और अब आप यहां तक आ गए हैं तो मेरा कोर्स जरूर खरीदिएगा, चाहे एक टाइम खाना स्किप करना पड़े, और 5% डिस्काउंट के लिए कोड जर्मन शेफर्ड जरूर यूज करें।